Hello viewers, what's up? Hope you all are doing well. Welcome to Didi Sang Sikho channel. Yes viewers, we were doing logical reasoning of class 6 and our topic is what comes next. Yes, what comes next? What comes next means finding the next term based on the given arrangement. Whatever arrangement is given to you, you have to find the next term. It is also known as series, can say. You are required to analyze the pattern followed by and find the next term. That is the meaning of what comes next. Like if you have given 1, 2, 4, 8, then what should be the next number? Let me show you. As there is given 1, 2, 4, 8, replace the question mark from these alternatives 18, 12, 16 and 14. Then what should be the answer? Means what comes next. That is the means of what comes next. Yes, we already had done letter series. We already had done letter series and now we are on number series. If you watch my last videos, then you can go there and search for these questions and practice on that of letter series of what comes next. And now we are on number series. After that we will do alphanumeric series. Some question we will do about number series and few of questions we will do on the topic of alphanumeric series. Okay, we are on number series today. We will do topic of number series. Number series of class 6 logical reasoning. Yes, logical. These are the question related to logical reasoning. You have to always try to solve lots of question of logical reasoning. Doesn't take matter what topic is. No, you have to do only practice on logical reasoning. Yes, it's really a fantastic topic, interesting also, and of course it's you can say it's tasty. Yes, actually that is because it's bound to you, bound to you. Yes, आप एक बार इसमें इंटरेस्ट लो ओनली वंस देन उसके बाद आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. यस, ओके. एज मैंने पहले भी बताया आपको कि हम लेटर सीरीज़ के क्वेश्चंस कर चुके हैं एंड वी आर ऑन नंबर सीरीज़ नाउ. पहले हमने लेटर्स के किए थे. आप लास्ट वीडियोस में जाके ये सब चेक कर सकते हैं और इनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. अब हम इस नंबर सीरीज़ करने जा रहे हैं तो ऑफकोर्स पेंसिल और पेपर की नीड होगी हमें. वी विल डू द direction, we will read the directions first and we will do the number series now. Okay, let's start. Take your pencil, take your paper as I tell you before and try to solve it first yourself, and after whenever I will explain it, match your answer with me and give 4 marks to yourself and comment me please if you got good marks. और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आप गेमिंग भी कर सकते हो. मैं अपने हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ कि आप शेयर करो. जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे आपको उतने ही इसके नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे और आपको और वीडियोस भी लॉजिकल रीजनिंग के मिलते रहेंगे. यस, तो आप अगर चाहते हो और वीडियोस लॉजिकल रीजनिंग के मैं बनाती रहूँ और आपको सेंड करती रहूँ, मैं तो बनाती रहूँ, बट आपके पास नोटिफिकेशन कब आएगी अगर आप शेयर करोगे वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट दोगे, लाइक्स दोगे. देन okay, leave it aside and read the direction question number 12 to 22. Find the next or missing, next या फिर missing whatever number in the given series. What is that series? 9, 13, 17, 21 and next one is question mark. Very easy question that is actually. Look at there. 9, 13, 17 पता चल ही रहा होगा एज
9 + 4 13 + 4 17। जो सेकेंड वाला डिजिट होता है उसमें से फर्स्ट वाले को माइनस करके पता चल जाता है कितना डिफरेंस है, इनका डिफरेंस हमें पता चल जाता है। एंड देन उसमें हम ऐड करते हैं, फिर हम नेक्स्ट में भी वही इतना ही ऐड करके देखते हैं। कई बार क्या होता है +4 +5 +6 इस टाइप से कंटिन्यू होता है। आगे आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के क्वेश्चंस मिलेंगे ना। अब इसमें क्या है +4, तो अब 21 + 4 25 है ऑप्शंस में। यस, so option A is the correct answer for that question. Okay, let's do the next question now. Here that is 98 90 82 74। अच्छा 98 से 90 -8 पता चल ही रहा है हमें। 98 में से मैंने 90 को माइनस करके देखा तो अच्छा सेम ही इसमें हो रहा है, देखते हैं। यस, -8 82 -8 74 -8 66। Then 66 would be the correct option for that question. It was easy now? Yes. Okay, let's do the next question now. What is that? 400 200 150. What is going on there? Look at there, 400 400 से हाफ हो गया 200, हाफ हो गया 100, देन अगेन हाफ हो गया तो 50। चलिए नेक्स्ट फिर से हम हाफ कर देते हैं। 25 है हमारे पास ऑप्शन में। यस, हियर दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। चलिए बहुत इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, फटाफट से होते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं एंड उसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। ओके, 2 4 12 48 240। अब हमें ये तो पता चल रहा है कि ये 2 की टेबल में तो आ रहे हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, ये तो समझ में आ रहा है। बट और क्या हो सकता है बहुत, फिर उसके बाद 2 को ये 24 ज़ा बहुत दूर दूर चला जाएगा। बट हम देखते हैं क्या पैटर्न चल सकता है और इसके अलावा क्या हमारे पास ऑप्शन है। अगर ये नहीं करे तो क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। मीन्स पहले इन्होंने क्या किया, 2 × 2 कर दिया, फिर क्या किया 4 × 3 कर दिया। अब नेक्स्ट 12 × 4 किया ना, 12 4 ज़ा 48। ओके देख लेते हैं 48 5 ज़ा 48 5 ज़ा तो मुझे नहीं आता, आपको भी आई थिंक नहीं आता होगा। 5 8 ज़ा 40 0 कैरी 4 एंड 5 4 ज़ा 20 24। यस, यानी कि ये ठीक कह रहे हैं, यही चल रहा है। अब हमें क्या करना है, 4 ज़ा तक तो हो गया, मीन्स अब हमें 5 ज़ा करना है। 245 ज़ा करते हैं, फिर देखते हैं हमारे ऑप्शन में है हमारे पास ये 0 एंड 5 4 ज़ा 20 2 कैरी एंड 5 2 ज़ा 10 एंड 2 12। but 4 3 ज़ा 12, अरे 12 4 ज़ा 48, 48 5 ज़ा किया था हमने, तो मीन्स ये 6 ज़ा करना था। अरे 6 ज़ा करना था, हो गई ना गड़बड़, देखो करते करते गड़बड़ हो गई। ओके फिर से कर लेते हैं। 0 और 6 4 ज़ा 24। मैं भी बोलूँ कि अभी 5 ज़ा ऊपर लिखा हुआ है तो नीचे मैं 5 ज़ा से ही क्यों कर रही हूँ। देखा, ध्यान देने से कितना गड़बड़ ठीक हो जाती है, अपनी कंसंट्रेशन रखनी चाहिए। बट पहले भी कंसंट्रेशन ही पुअर हुई थी। 6 4 ज़ा 24। यस, 4 एंड 2 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 12 एंड 2 14। यस, और वैसे भी जो पहले हम कर रहे थे वो तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं था। अगर 5 ज़ा करते तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं होता। अब ये एटलीस्ट हमारे ऑप्शन में तो है। चलिए देखते हैं कहाँ, ये रहा हमारे पास ऑप्शन।
C. Yes. Option C is the correct answer for that question. आपको समझ में आया ये पैटर्न? ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा. 2 2 ज़ा 2 ज़ा, फिर 3 ज़ा 4 ज़ा 5 ज़ा, जहाँ पे हमने गड़बड़, मैंने तो गड़बड़ की है अभी. 5 ज़ा, यहाँ पे आके मैंने गड़बड़ करी, फिर से 5 ज़ा कर दिया. करना था 6 ज़ा. चलो हमने फटाफट से उसे कर लिया पूरा. वो करने से पहले वैसे भी हमें मिलता भी ना ऑप्शन में, बट थोड़ी सी कंसल्टेशन फिर भी करना चाहिए हमें. चलिए 24 6 1440 1440 हो गया हमारा करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन मार्क. ऑप्शंस तो हमें पूरे उसमें दे रखे हैं. चलिए ओके, ऑप्शन है हमारे पास. चलिए पहले देखते हैं. 2 क्वेश्चन क्या है? 2 3 5 7 11 13. कितना छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रखा है वैसे तो ये. यस, बहुत ही इजी है. कैसे इजी है? 2 + 1 3, 3 + 2. यस, consecutive prime numbers are given na. Yes, look at there. Here the consecutive prime numbers are given. 2 3 5 7 11. बच्चे इसको आप इस तरह से भी ले सकते हो. और दूसरा हमारा जो लॉजिकल रीजनिंग में होता है 2 3 + 2 5, फिर से +2 7, 7 के बाद 8 9 10 11. कैसे हुआ? क्या प्लस किया, क्या माइनस किया, कैसे पता चलेगा? अच्छा, 7 के आफ्टर 9 क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स चल रहे हैं. आपने अपनी मैथ की बुक में किए होंगे प्राइम नंबर्स. चलिए प्राइम नंबर्स बताइए क्या होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. प्राइम नंबर होते क्या हैं? यू नो दैट कि प्राइम नंबर आर द नंबर्स विच कम्स इन देयर ओन टेबल एंड वन टेबल. वन की टेबल में आए, in the one table, one's table and table of their owns. It's owns to table है. 2 सिर्फ 2 की टेबल में है, 3 सिर्फ 3 की टेबल में है, 5 सिर्फ 5. और ये कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स है. यस, देखिए 13. इसके बाद कौन सा आता है हमारा? 14 है, 15 है, 16 है, 17 है. विच नंबर विल कम? अगर हम अपनी लॉजिकल रीजनिंग के लॉजिक के हिसाब से चलते तो क्या हम इसका आंसर ढूंढ पाते? बिल्कुल नहीं ढूंढ पाते. क्यों? 2 + 1 3. जैसे मैंने अभी पहले बताया, 3 में 2 प्लस किया, पहले 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया. ढूंढते रह जाते हैं हम. फिर से 2 प्लस कर दिया, फिर से क्या 2 प्लस किया? नहीं, फिर 4 प्लस किया. सो 7 + 4 कर दिया, फिर से 11 + 2 कर दिया. कुछ पैटर्न नहीं बनता. बट जैसे मैंने आपको पहले बताया, ऐसे टेल यू बिफोर दैट हियर द कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स आर गिवन, देयरफॉर द नेक्स्ट टाइम प्राइम नंबर विल बी 14. है क्या? नहीं, 14 नहीं है, क्योंकि 14 तो 2 की 7 की टेबल में आता है, और अपनी टेबल में भी 15 भी आता है. सारे ये भी नहीं कह सकते कि ये इवन नंबर्स हैं, क्योंकि 2 आ गया फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जो कि इवन नंबर है. ये सब ऑड नंबर भी नहीं है, आई मीन टू से ये ऑड नंबर भी नहीं, ये सारे ऑड हैं. बट इसके आफ्टर फिर कैसे लेते हैं हम? क्योंकि ये हमारे पास इवन नंबर पहले से ही आ गया, स्टार्टिंग ही उससे. तो ये प्राइम नंबर से बच्चे. तो 14 15 16 और 17 ऑप्शन हमारे पास 4 अल्टरनेटिव्स हैं. इनमें से 15 भी 3 और 5 की टेबल में आता है, इसलिए ये नहीं हो सकता. 16 भी 2 4 की टेबल में आता है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता. 17, ये 17 किस टेबल में आता है? याद करो. नहीं बच्चा, नहीं आता है. तो 17 वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन. बच्चे जितने भी आप क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ, आप उस वीडियो को पॉज करो. पॉज करके क्वेश्चन करने से, मेरे आंसर देने से पहले
आप आंसर निकालो, फिर व्हेन एवर आई एक्सप्लेन, जब मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ उसके बाद मैं आंसर भी टिक करती हूँ। मैच करो कि आपका आंसर मैच कर रहा है। और एक्सप्लेनेशन बचा ज़रूर सुनो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, मैंने जैसे किसी भी क्वेश्चन में बताया कि हम ये गलती कर जाते हैं, जैसे हमने पहले यहाँ पे ये गलती करी थी एक क्वेश्चन में, ठीक है। ये यूजुअली बच्चे भी कर जाते हैं, बड़े भी कर जाते हैं। ऑफ कोर्स आपने देखा हो क्लास में कई बार टीचर ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन में कुछ लिखना होता है और वो कुछ लिख जाती हैं, ठीक है। तो मिस्टेक सब कर जाते हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि हम वाकई ही मिस्टेक कर जाते हैं, तो उस मिस्टेक को हम रिपीट नहीं करें, ध्यान रखें। उसके लिए हमें एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन में कई बार हम बताते हुए ये भी करते हैं कि एक के साथ साथ हम 3 क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि 9 के आफ्टर +4 है, +5 भी हो सकता है। आगे हमारे पास उस टाइप का भी आया, माइनस हुआ। ये उसके बाद किस क्वेश्चन में था, जैसे इस क्वेश्चन में था +2 था। इसके बाद हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन थी, सॉरी, इसमें 2 2 था, फिर 4 3 12 4 इस तरह से भी कॉन्टिन्यूटी चलती है। तो सेम अब इसमें भी हमारा कोई लॉजिकल रीजनिंग वाला नहीं चल रहा था, इसमें हमारा प्राइम नंबर ही चल रहा है। प्राइम नंबर भी एक पैटर्न में चल रहे हैं, हमने लॉजिक लगाया बच्चे, इसलिए इसको लॉजिकल रीजनिंग वाला क्वेश्चन भी कहेंगे और हमारे मैथ्स के रिलेटेड भी क्वेश्चन कहेंगे। चलिए, leave it aside and go to the next question. 15, 45, 20, 42, 25, 39 question mark. Yes, tell me no. इसमें क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करने के लिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ट्राई करो, एक बार ट्राई करो। 15 कैसे आया 45 15 से, और उसके बाद 20। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। देखो, अगर मैं आप पहले वीडियो को पॉज करो, 1 सेकेंड पॉज करो, उसके बाद आप आंसर खुद ट्राई करो कि आपको आंसर मिल रहा है। थोड़ा सा समझ में आ रहा हो आंसर, कि कुछ कुछ मैच कर रहा है, कहीं कहीं कुछ कुछ मैच कर रहा है, कुछ दिख रहा हो, ऐसा ज़रूर दिखेगा। देखिए 15, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आंसर। अगर आपने पॉज करके कंटिन्यू कर लिया है अपना वीडियो, देन लेट मी एक्सप्लेन। 15 + 5 20। देखो, ये यहाँ से इधर जंप मार रहा है, सेम 25। वैसे तो हमारा यहाँ पे 30 आके काम ख़त्म, हमें ज़्यादा पंगे में नहीं पड़ना है। बट पंगे में क्यों पड़ना पड़ेगा, चेक करना है कि क्या सीक्वेंस हमारा ठीक चल रहा है। ये वाला भी 45 - 3, यस, ये +5 5 एंड देयर वुड बी +5। यहाँ पे देखते हैं क्या सेम पैटर्न चल रहा है हमारा। 45 - 3 एंड सेम 42 - 3 मीन्स इसका और इसका आपस में कोई लिंक नहीं है, इसीलिए हमें ये चेक करना ज़रूरी था कि ये पैटर्न इस अकॉर्डिंग चल रहा है। ये नीचे से ले लिया, चलो ऊपर से भी चाहे आप ले लो, बट एक को स्किप करके 15 स्किप किया, 45 20 आ गया, 20 स्किप किया, 42 एंड 25 आ गया, ठीक है। 39 स्किप किया, 25 में प्लस किया 5 एंड 30 आ गया। था ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? यस, it was actually a interesting question, yes. So answer would be 30. I think that is clear to you now. आपका मैच किया क्वेश्चन ये वाला आंसर? Then give yourself 4 marks. अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, -1 दे सकते हैं हम। हो सकता है नेक्स्ट में हमारे +4 हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में, और उससे हमें इजी हो जाए अच्छे मार्क्स गेट करना। बट बी लॉयल और कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स मुझे ज़रूर बताओ। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए, अब ये क्वेश्चन मैं आप इसको करिए, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, ठीक है।
इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको मेरा चैनल पे लॉजिकल रीजनिंग के और भी क्वेश्चन देखने हैं, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, share my channel, comment me, and share with your friends of course, and subscribe my channel. Till then, goodbye, and I will answer that question. Of course, I will answer that question in my next video, and wait for my next video. Goodbye. Till then.